वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज़ का जो हम टॉपर्स की आंसर शीट को समझ रहे हैं कि किस तरीके से टॉपर्स आंसर्स लिखते हैं बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन है 31, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 दिए हैं उसने। डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ये बच्चों 3 है, तो इसका मतलब 6 मार्क्स है तो 2 ईच का आएगा। उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है और उसने कैसे आंसर दिया है और कैसे रिकमेंड किया गया कि टू द पॉइंट एंड वेल रिटन आंसर है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले उसने एक्सप्लेन किया डिवीजन ऑफ वर्क। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू small tasks or job, and a specialist must be appointed to perform all the tasks who are trained and have a very good knowledge about the task. Right students, this principle leads to specialization. The objective is to ensure maximum utilization of human and material resources to their fullest advantage in order to increase the efficiency. और उसके बाद this will result in reduction of burden, duplication of work and increase in productivity. For example, in a management organization, production, purchase, sales और finance functions होते हैं. These departments or works can be divided and each headed by a specialist to increase productivity. Right students? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। द रेम्यूनरेशन दैट इज द वेजेस और सैलरी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी जस्ट एंड फेयर। सो फार द एम्प्लॉइज इन द रेम्यूनरेशन provided should be able to give them a decent standard of living, and for the organization it should be within the paying capacity of the firm. A good fair remuneration will also help in maintaining good cordial relation between employer and the employees, and also maintaining a good working atmosphere in which the productivity can be increased. Third principle है students, subordination of individual interest to general interest. In organization, an organization has number of stakeholders like the investors, suppliers, workers, and also the individual working in the organization have their own objectives, interests for joining the business and have various opinions. For example, one employee may join for a good salary, one may want promotion and other personal objective, but at all the situations the interest, goal, objective of organization should supersede the individual interest, as the largest interest of the various shareholders can't be sacrificed for an individual interest, and at every situation the organization must prioritize its organization objective. This can be ensured by an exemplary behavior of superior. This will include the superior not giving any advantage or show his power for his own or family benefit. Okay, this will raise his or her stature in the eyes of the workers and pursue the same in return. तो ये आपको उसका आंसर था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को उसने कैसे लिखा है टॉपर ने। इट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड, identifying various alternative courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from amongst the various alternative courses of action available. Identify the functions of management referred above. B. State any 5 points of importance of the functions of the management identified in the above. चलिए, तो इसका तो मतलब क्या बन रहा है, ये फंक्शन कौन सा बन रहा है? प्लानिंग। अब कैसे पता चलेगा? वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन से ये तो पता चल गया। अब उसमें हमें क्या करना है? बी में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के स्टेट एनी 5, तो कोई 5 आपको इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट देने। उसने पहले क्या लिखा है? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो ये जो आपकी बुक में जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है या आपने सीखा है या समझा है या जो भी आपकी बुक में से आपने पढ़ा है, याद क्यों है, आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो इसने लिखा है
सिर्फ वही लिखना होता है। ये एक पैरामीटर है, एक बेंचमार्क है कि इस तरीके से लिखने से आपके मार्क्स, क्लैरिटी से लिखने से, पूरे थॉट प्रोसेस को चलाने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बट हेडिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये इसको इंश्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और यहाँ भी आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना जो इससे रिलेटेड, हेडिंग से रिलेटेड ना हो, राइट स्टूडेंट्स। और दूसरी इंपॉर्टेंस उसने क्या लिखी है, दूसरा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, और उसमें भी उसने लिखा है प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फ्यूचर एजम्पशंस, फोरकास्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। और तीसरा क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ओके, फोर्थ उसने क्या लिखा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। और फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट में उसने लिखा है प्लानिंग रिड्यूसेस एंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो ये उसके 5 पॉइंट उसने लिखे हैं। माइंड इट कि आपको प्रॉपर हेडिंग लिखने के साथ हेडिंग के अंदर उससे रिलेटेड ही टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये आई डोंट थिंक कि मुझे अब आपको ये चीज़ समझानी चाहिए, प्रॉपरली लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको 6 में से 6 मार्क्स लेने हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। दूसरा पॉइंट लिखा उसने प्लानिंग फ्यूचरिस्ट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग रिड्यूसेस द राइज ऑफ रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। फोर्थ है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। और फिफ्थ प्लानिंग रिड्यूसेस एंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक्स लिमिटेड engaged in manufacturing of cars. X Limited engaged in manufacturing of cars. The company surveyed the market and found that consumers need a car which run on eco-friendly fuel instead of petrol or diesel. Keeping the needs of the customers as well as social, ethical and ecological aspects of the marketing in mind, the company launched a new model of the car that runs on a biodiesel. The launch event was covered by the top news channels and newspapers. This was done to disseminate information about the car and build goodwill of the business. X Limited understands that it is imperative to manage public opinion and company's relation with the public on a regular basis. इसका A पॉइंट है, क्या लिखा उसने, 3 क्वेश्चंस बना दिए 6 मार्क्स के। तो आपको ये केस स्टडी अंडरस्टैंड करने के बाद इन तीनों के आंसर देने हैं जो अंडरस्टूड है कि 2 मार्क्स ईच के बन जाएंगे। पहली बात, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केट फिलॉसफी। वो मार्केट फिलॉसफी आपको आइडेंटिफाई भी करनी है और एक्सप्लेन भी करनी है इन द अबव केस। दूसरा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल यूज्ड बाय द कंपनी। और तीसरा है एक्सप्लेन एनी टू प्रमोशनल टूल can be used by X Limited to achieve its objective. पहला है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इज इन्वॉल्व, बिकॉज वो सोशल एंड इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, सोशल। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है दिस स्टेट्स बोथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल एस्पेक्ट्स मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस टू इंक्रीज द सेल। ओके, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट. The activities that are satisfying consumer wants that but prove to be detrimental to society. Okay, ये आपको आंसर इसका लिखना है. I mean societal marketing concept को आपको explain करना है. Next, second है identify and explain the communication tools. तो इसमें क्या है बच्चों, the communication tool used by the company is पब्लिक रिलेशन. इसमें कौन सा कम्युनिकेशन टूल यूज किया उसने, पब्लिक रिलेशन का. दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द प्रोडक्ट बाय मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द पब्लिक. तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है. और तीसरा, वो कौन से अदर 2 प्रमोशनल टूल्स को इस्तेमाल कर सकता है, वो है अदर प्रमोशनल टूल कैन बी यूज्ड इन आर एडवर्टाइजिंग. वो एडवर्टाइजमेंट को भी यूज़ कर सकता है और सेल प्रमोशन को भी यूज़ कर सकता है. ठीक है जी. तो ये आपने प्रमोशनल टूल्स देने हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन टूल के रूप में पब्लिक रिलेशन तो यूज़ कर लिया. ठीक है, फिर बाकी जो रह गए उनमें से कोई आप 2 एक्सप्लेन कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, पर्सनल सेलिंग तो इसमें आ सकता है, लेकिन उसने यही 2 लिखे हैं.
ठीक है। पर्सनल सेलिंग की भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है जब आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, बट उसने यही 2 लिखे हैं, आपको भी यही 2 एक्सप्लेन करने हैं और इसको याद आप प्रॉपर तरीके से करेंगे जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है और जैसे भी आप लोगों को ये नोट कराया गया है नोटबुक्स में, जैसे आपने लिखा है उसी को ही प्रॉपर तरीके से याद करिए। राइट हो, चले अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। उसके लिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि उन्होंने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है, मतलब आपको ये केस स्टडी में प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है और अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वीट्स एंड मोर इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स फॉर स्नैक्स एंड स्वीट्स। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स, नमकीन्स, कुकीज एंड फ्रोजन फूड्स। इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहीं से समझ आ रहा है कि क्वेश्चन वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा। कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स ऑफ इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी। ईच ऑफ दीज यूनिट्स हैव अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस having authority over the unit. Moreover, each of these units is multifunctional, as within each unit different functions like production, marketing, finance, etc. are performed. Though this kind of organizational structure leads to increased cost because of the duplication of activities across products, but it provides a proper basis for performance measurement, as revenue and cost related to each of the business units can be easily identified. आइडेंटिफाई, उसमें आपको करना क्या बच्चों, अब आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्वीट एंड मोर्स एंड 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे। तो यहां से हम अंडरस्टैंड करते हैं इट्स अ मल्टी फंक्शनल विद इन ईच यूनिट डिफरेंट फंक्शनल फंक्शंस, लाइक ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल है वो डिविजनल है, बिकॉज वो किस में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज उनकी है जो सेपरेट डिफरेंट कैटेगरीज। ईच मैनेजर यूनिट हैव ए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस हैविंग अथॉरिटी ओवर यूनिट। हर उसको उसकी अथॉरिटी है अपने यूनिट को संभालने की, ठीक है। और मोर ओवर ईच यूनिट इन मल्टी फंक्शनल, एज विद इन ईच यूनिट डिफरेंट फंक्शंस, उनके अपने फंक्शंस के सबका अपना प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस है। Though this kind of organizational structure leads to increased cost because of the duplication of activities across the products, different products है ना इनके, तो ये फिर कौन सा बना बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसके उन्होंने क्या बोला है, कोई 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस आपको मेंशन करने हैं। और जो उन्होंने उस बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, दूसरा ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोजीशन और तीसरा हेल्प्स इन ग्रोथ। ओके, एंड उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस उसने दिए हैं वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स और दूसरा मिसयूज ऑफ पावर्स। राइट स्टूडेंट्स, ये आपको प्रॉपर आंसर देना है, मतलब आपको पहले केस स्टडी को अंडरस्टैंड करके ये बताना था कि उसका कौन सा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिविजनल है बिकॉज मल्टी प्रोडक्ट्स में और उनके अपने फंक्शंस के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। और उसके बाद आपको कोई 3 एडवांटेजेस और कोई 2 डिसएडवांटेजेस बतानी है, प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स लिख के उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए। विशिंग यू गुड लक।